Yes, dear. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Shivang. How are you? सर ऑल गुड ऑल वेल, आप बताइए। Chalo, well, all well, good. So today we'll continue with the. Yeah, good morning, Vijesh. We'll continue with the Tanko numericals. So we have done one type, that is your density change, or what we call density change per degree centigrade. That we know that we are changing the density to the temperature of the volume of oil. And the second method is that we change the volume to the temperature of density. Now in this case, if you see what we use the ASTM tables, that normally today the terminals they give you density at one standard temperature. That's about 15 degrees centigrade. And that is the density they basically find out in their lab. And that is the correct density in vacuum. So this density which is given to us normally is at 15 degrees centigrade, and it is calculated by the terminals or the people who are working there in the laboratory. Now our temperature, when we load a oil, when we take the oil, the temperature of that oil may be different. So what do? We change the, or we basically convert the volume to the temperature of the density. So this is how it is done by the ASTM table. So this is what is there in front of you, that what is normally the API, the density or the API is provided by the terminal. Normally if you go to this Persian Gulf, of course still some parts they deal differently, but basically in Persian Gulf and all they give you API and all. So from API also we can find out the density at 15 degrees centigrade, and this density at 15 degrees centigrade if known, so we know how to calculate. So a little bit about the API gravity. API gravity, basically API stands for American Petroleum Institute, which is a major United States trade association for oil and natural gas industry. And इनका जो API system है, API is again basically tells whether the crude is light or heavy. So API between 15 and 45 degrees. Higher API indicates a lighter crude and lower API indicates a higher crude. So we have table 3 also in the ASTM table, from where we can convert this API into the density at 15 degrees centigrade. सर ये API क्या बताया आपने? It's basically like a density for them only. So it's the full form is American Petroleum Index for the particular oil. So normally it is between 15 and 45 degrees. Like they may give you API is 30, API is 30.5. But these ASTM tables, when we have to convert the volume to 15 degrees centigrade, so we use table 54. Now table 54 I will show you later on, or I think most of you must be having ASTM tables with you. So there we get one factor. So when we multiply that factor, how do we achieve that factor? Okay, I'll come to that. So first I just explain you this API. It is nothing, it is just the American way of dealing with the crudes. So it is as good as like what we call it density at 15 degrees centigrade. So they measure with terms of API. So now their API is between 15 and 45, and it gives us the whether the crude is lighter or heavier. Now if you see there we have only two things. One, calculation by ASTM allege to volume to weight.
Now whenever you are loading at any terminal or even the question, the ullage is given to us. So we can obtain the GOV, we can obtain the volume, observed volume by length, breadth into the height of oil from the ullage. And then we find out the VCF. Now we will see how we find out the VCF from table 54. And when we multiply this volume, which is at any temperature, say 30 degree, 25 degree, when we multiply by VCF, we straightway convert this volume into 15 degree centigrade. So that's why it is called gross standard volume. Gross observed volume multiplied by VCF gives us gross standard volume. Gross standard volume is nothing, it is just that volume of that oil at 15 degree centigrade. And then we multiply this by another factor. Now this is the volume at 15 degree centigrade. Now आपके मन में आएगा कि we have the density at 15 degree centigrade and we have the volume also at 15 degree centigrade. Now if we multiply this, we should get a mass. Of course, we get a mass, but that mass will be because we are multiplying with the density in vacuum. So we will get the mass in vacuum. So now to get the mass in air, so what we have to do is there is another factor called WCF, weight correction factor, what we call, or in layman terms it is density in air. So how do we find out that? Density at 15 degree centigrade in vacuum is given minus this factor 0.0011. If we do from this density, we get this factor WCF. When we multiply by this WCF, GSP multiplied by WCF, we get the weight in metric ton. So this is very simple way of getting the mass of an oil which is at different temperature and the density is at different temperature. Now how do we get this VCF? Now if you look at table 54 in your ASTM tables, table 54, yeah, 52, 54. If you see this table 54, it is arranged in such a way that on top it is like say density at 15 degree centigrade is given. These are the different densities, and here you have the observed temperature. सर ये सारे टैंकर्स के लिए सर ये Yeah, chemical oil. Normally there are two tables, table 54A and 54B. One is for black oils and one is for white oils. But for examination purpose, आपके पास ये जो छोटी सी book है, we are using only this table 54 for all the oils. So ये 07800810 क्या लिखा है ऊपर? Yeah, this is the range of density. It starts from 0.78 on this page, 0.78 to 0.810. It is against the temperature. Now if you see, if I go to previous page, now this starts with temperature 0, 1, 2, 3, 4, 5. It is same. Here it is 0.780 to 0.810. This is the range of density which is mentioned here. And this is the density at 15 degrees centigrade. Now suppose your oil is at say 30 degrees centigrade and your density is say 0.8. Density given to me is 0.8. So now I go to this 0.8 and temperature at 30 degrees centigrade. I will get this factor 0.9863, isn't it? So ये factor आपको यहाँ से, this is what we call the VCF, is the volume correction factor. So volume correction factor is nothing, it is just that how your oil is getting affected by the temperature, how the density is getting affected by the temperature. So this is just for conversion of your volume from 30 degree to 15 degree centigrade. So this is what we call the VCF from table 54, and how we enter whatever temperature of my oil is there. Now you are loading oil, that's what I say, maybe at 30 degree centigrade. Density given to me is at 15 degree centigrade is 0.8. I look into this table alongside this 30 and I go to this 0.8, I get this factor 0.983. Now example, if your volume is say 1000 meter cube at 30 degree centigrade, now if I multiply by 0.9863, that means
that 1000 meter cube will actually be 986.3 meter cube at 15 degrees centigrade. This is just the conversion this table gives you. So this is how we enter this table 54 to obtain the VCF. And again WCF, I told you, yes, you have table 56, but that table is also made on this factor 0.0011. So finally, to get the mass, length, breadth into height of oil from the ullage, VCF from table 54, WCF by minusing the density or the factor from the density at 15 degrees centigrade, we get the weight in air. Now second question comes, now if the weight is known to you, if you know the weight, your oil is weighing 1000 metric ton, and you want to know the volume at particular temperature, that is another thing. Now how do we do that? So it is also very simple, weight to volume to ullage. So we find out the, first of all, WCF. Now WCF is again density minus this, and GSV is equal to weight divided by WCF. Now the weight, if you divide by WCF, you straight away get GSV, that is your gross standard volume, means the volume at 15 degrees centigrade. Now to find out the GOV at any observed temperature, we find out the VCF for that temperature. Suppose I want to find out what will be the volume of 1000 metric ton at 30 degrees centigrade. So I go to, I know the density, I know the temperature 30 degree, I find out the VCF at 30 degrees centigrade, and if you divide this GSV with this VCF at 30 degree, you straight away get the observed volume at 30 degrees centigrade. And this observed volume, if you divide by area, you get the height of oil, and height of oil means height of tank minus height of oil will give you the ullage. So these are the two methods, very simple. So I'll just go back a little bit on the board to explain you that how these things, it is maybe looking complicated to you, but let's see. Isme nothing, there is only one formula what we use. सर डिप मतलब क्या होता है? You said dip, is it? हाँ सर? You said dip. Yes sir. Yeah, dip is basically like this is your tank. Of course not nowadays, previously this is your ullage port, and if I take a sounding rod and I lower it, and suppose there is a oil or water, so ये जो मेरे को इसकी, now if I put a, normally previously, of course nowadays we have a closed ullaging system, but previously suppose there is a oil and यहाँ पे नीचे आपके free water है, oil के नीचे water will separate. Now those days what we used to do, how to calculate this water कितना है? So we used to take a sounding rod, water finding paste लगाया उसके, and you lower it. It is like taking a sounding. So जितना इस पे पानी होगा आपकी sounding rod पे, उतना उसका color change हो जाएगा. So we know this is called a dip, that there is a 5 centimeter of water down below. So that is basically what we call the dip. Okay. अब हमने क्या किया है? Now today our thing is to how to find out the second method, how to calculate the mass, and we also know basically mass is equal to volume into density. Back to that simple equation. Now this method what we are doing by ASTM tables, the density at 15 degrees centigrade is known to me. Density at 15 degrees centigrade in vacuum is given to me, say 0.85. My oil temperature is 30 degree.
say the volume at 30 degree centigrade is 1000 meter cube and density at 15 degree centigrade. Now I cannot, if I multiply, no, 30 degree and 15 degree, two different things. Volume and density should be at same temperature. So we convert this volume of 1000 to 15 degree centigrade. At 15 degree centigrade, ये 1000 meter cube will be how much? It will remain how much? So that is what we do, that we go to the table 54. Against this temperature 30, we find out the VCF, say for 0.85 at 30 degree centigrade, just it may be say 9880. Now this volume, when I multiply, now I have the VCF 0.9880. When I multiply this, now this is what we call gross observed volume. And this gross observed volume when multiplied by VCF 0.9880, what we get is basically GSV, gross standard volume, or in simple terms is the volume at 15 degree centigrade. Now example, now it has come 988 meter cube. Now if I multiply this volume with the density which is given to me in vacuum, so what do I get? We will get mass in vacuum. Why? Because I am multiplying this 988 with 0.85. This is the density in 15 degree centigrade in vacuum. Now to calculate your mass in air, we convert this density in vacuum to density in air. So that is what there is called a buoyancy factor. Now to calculate volume correction factor is density at 15 degree centigrade minus 0.0011. So 0.85 minus 0.0081, that will give you WCF or density in air. So 0.85 में से किया तो हमारे पास आ गया 0.8489. Now to get this, so what do we do? 988 into, this is the GSV, so 988 straight away into 0.8489. This will give you the mass in air metric tons. So your final equation, what is? WCF हम टेबल 56 से भी निकाल सकते हैं सर? Yes, 56 is also based on this also. If you look at table 56, उसमें भी आप देखिए, so he has done this only. He has just applied this buoyancy factor 0.0011, and he has giving you the WCF. You want? Okay, sir. Yeah. अगर आप table 56 भी खोलोगे, वो इसी पे बना, आप वहाँ से भी निकाल सकते हो. I think this is the easy method. Instead of interpolation doing there, straight away from density minus this, because the table is based also on this. ठीक है सर, ओके. Yeah. So ultimately हमारी equation क्या बनी? Mass is equal to GOV into VCF into WCF. यही एक चीज आपको याद रखनी है सिर्फ. Mass is equal to gross observed volume into VCF into WCF. Now if you look at this, what is this? GOV into VCF क्या चीज है? GSV sir, GSV. GSV. Correct, is what we call GSV. जब हम अपने GOV को VCF से वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, so we get the volume at 15 degree centigrade. So इसीलिए हम इसे ये भी लिख सकते हैं, mass or the weight or the quantity of oil is GSV into WCF. अब ये चीज तो ओके, वेरी गुड, वी नो, ये तो सिंपल, वेरी नाइसली अंडरस्टूड. अब है कि यार इफ आई नो द मास, इफ आई नो द मास, देन हाउ टू कैलकुलेट कि इस मास का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होगा. सो दीज आर द क्वेश्चंस आल्सो वी कैन गेट. नाउ ये तो था फ्रॉम मास. तो ये हमारी इक्वेशन थी फ्रॉम
ullage to volume to mass. अब सेकंड हमारा है here if I know the mass, I want to go to volume and then I want to go to ullage. तो उसके लिए भी सिंपल, इफ यू रिमेंबर दिस वन इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड यू विल कम टू नो दैट इवन इफ द मास इज गिवन टू मी, मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करता हूँ एंड यू सी व्हाट दिस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी कैन ड्राइव. Mass is equal to GOV into VCF into WCF. Now if I divide the mass by WCF, I bring this WCF here. It is equal to GOV into VCF. What is this GOV into VCF? Basically GSV. Yes, sir. अब मेरे पास था 1000 मेट्रिक टन, उस 1000 मेट्रिक टन को I डिवाइड बाय WCF जो मैंने यहाँ निकाला था से 0.8489. WCF has got no connection, just from density which is given to me at 15 degree centigrade minus 0.0011 किया, मेरे पास WCF आ गया. That means this is equal to GSV 15 डिग्री पे. अब मेरे पास GSV आ गया. Now it is very easy, मास था डिवाइड बाय WCF, I get the GSV. अब इसी इक्वेशन से हम अगर देखें what is GSV is GOV volume at 15 degree to VCF. अब अगर इस GSV को if I bring this VCF here, GSV divide by VCF. Now I want to calculate the volume of this 1000 metric ton at 30 degree centigrade. तो मैं 30 डिग्री का VCF निकालता हूँ, तो आपको 30 डिग्री का GOV मिल जाएगा. करेक्ट. सो किया क्या हमने, बेसिकली GSV, अब इसको मैं VCF से डिवाइड करता हूँ. सो बेसिकली दिस इज माय GSV. सो आई डिवाइड बाय VCF at 30 degree centigrade. I straight away get GOV at 30 degree. Instead of doing such a long, so what we do in a simple way, if I know the mass, I divide by WCF, I get GSV, and this GSV I divide by VCF at required temperature. Example 30 degree है, I get GOV at 30 degree. Once I know the volume, GOV divide by area of the tank gives me the height of oil. And height of oil अगर आपके पास आ गई from the tank, अगर आपका ये टैंक है, and if you know the height of oil, total depth minus height of oil, you will get the ullage. Mass to volume to ullage. यार कितनी ullage पे मैं अपने टैंक को रोक दूंगा, यार I need only this much volume in the tank. Any doubts? Anything which is not understood? तो आपको एक छोटी सी इसी के साथ एक एक्सरसाइज देता हूँ. नाउ वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ ऑयल at 40 degree centigrade is 2456 meter cube. And density of oil at
15 degrees centigrade in vacuum is given to you 0.79. Determine the weight of oil loaded. Can you calculate the weight of oil? Volume is given to you, density is given to you. सर टेम्परेचर इतना ही है सर, 15 भी कैलकुलेट करना है? Yeah, volume at 40 degree. Oh sorry, okay, 40 degree, okay. Volume of oil, what temperature of the oil is at 40 degree centigrade. Temperature of the oil is 40 degree, and volume at 40 degrees 2456. Okay sir, ठीक है सर, thank you. सर वो ASTM टेबल शेयर कर देंगे ग्रुप में सर? हाँ जी कीजिए, देखिए कैसे करोगे. एनी हिंट? सर GSV निकाल लेंगे, GOV मल्टीप्लाई VCF करके. करेक्ट. 1892. ओके देन ठीक है. GOV आपके पास है 2456. आई एम नॉट यूजिंग फॉर एनी कैलकुलेशन, मेथड, डायमेंशन, नथिंग. अली स्ट्रेट वे वी हैव गिवन यू. This is the volume at 40 degrees centigrade. Can you find out what is the VCF? सर निकाल रहे हैं, 1 मिनट सर. Okay. 9765. Okay, very good. VCF is 9765. सर हाँ जी. सर कैन यू प्लीज शेयर ASTM टेबल इन द ग्रुप? अच्छा, ग्रुप में जाना है. ग्रुप में तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा. सर हाँ जी. हाँ जी बच्चे बोलो. सर डेंसिटी 0.79 दे रखी है ना? या करेक्ट. ये कितना आया सर? 1892 सर? या करेक्ट. देखो बच्चे, किसी के पास ASTM टेबल है तो इफ यू कैन पुट इट इन द ग्रुप. माय मे टेक टाइम टू सर्च इट. आउट करने के लिए too much mess here. सर ये WRF कहाँ से मिलता है? WCF? हाँ
WCF आपके पास डेंसिटी है, WCF इज इक्वल टू डेंसिटी एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 0.79 minus 0.0011 will give you WCF. If subtract this factor, seven, eight, eight, nine. Rock with it, girl. Rock with it, girl. So it is simple here. GOV 2456. You got VCF 0.9765. GSV is equal to 2456 into 0.9765, which is equal to how much? 2398. .284. WCF आपने निकाल लिया 0.7889 plus GSP into WCF is 2398. Is 189. Yeah, 1892.00. Yes, sir. 1892.01. सर हाँ जी, सर जैसे वेट इन एयर निकालना होता था तो अपन जीएसवी को डायरेक्टली WRF वेट रिजेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर अब जैसे मैं इस टेबल में देख रहा हूँ, टेबल 56 में, तो इसमें तो मेरे पास डेंसिटी है ही नहीं, मतलब 0.79 वाली तो अवेलेबल बुक में। ओके, मे बी योर रेंज, हो सकता है मेरी रेंज बाहर चली गई हो। लेट मी शेयर दिस। ओके, 1 मिनट, share that ASTM. Get used to the ASTM में, so this is my 54 and if I go to 54, 56, now if you see table 56 here, so it starts with, of course this table starts with 0.80. हाँ सर, ये बच्चे कंसोलिडेटेड पेजेस है ना, तो वो तो जस्ट ऑफ हैंड मैंने आपको रफली दिया है। तो इफ यू सी हियर द डेंसिटी से 0.8 एंड आई वांट टू कैलकुलेट किलोग्राम्स पर लीटर, मींस 1 लीटर में कितने किलोग्राम्स है, वेट करेक्शन फैक्टर। सो इफ यू 0.8 उसमें से -001 कीजिए, वही 7989, इसी को भी माइनस कर लीजिए, आपके पास वो कॉमन फैक्टर वही आएगा 0.00। इन दोनों का डिफरेंस जो है 0.0011 ही है। तो WRF पिक तो इसी में से करेंगे ना, डेंसिटी के सामने देख के जो भी वैल्यू होती है वही पिक करते थे ना WRF में। करेक्ट करेक्ट। So instead of even referring the table, वैसे तो ठीक है, it is good that you refer table 56, otherwise मैं वहाँ पे लिख भी सकता हूँ WCF is equal to density in 15 degree, that is 0.8 minus 0.0011. No need to waste time into the table, but if you are fast in table, you can look into the table also, no harm. तो सिंपल करने के लिए सीधा सब्ट्रैक्ट करते ना 0.0011, तो हमारा आंसर तो वही आएगा ना सर, तो टेबल का करेक्ट, व्हाई टू वेस्ट ऑफ टाइम। करेक्ट, वही मैं कह रहा हूँ बच्चे, सबको अपना अपना, somebody is fast in table, somebody is fast in subtracting, तो आई थिंक कैलकुलेटर से उसको सब्ट्रैक्ट करना ज़्यादा इजी है। आप लिख सकते हो WCF शो कर दीजिए, तो एग्जामिनर नोज कि आपने WCF कहाँ से निकाला, इट इज़ द सेम थिंग। सर WRF और WCF सेम होता है क्या? यस यस बच्चे, पहले इसको VCF को भी VRF कहते थे। VRF मीन्स वॉल्यूम रिडक्शन फैक्टर, कि आप वॉल्यूम को रिड्यूस कर, सो दिस वाज अगेन वेट रिडक्शन फैक्टर। सो अब उन्होंने कहा यार ऑल द टाइम यू आर नॉट रिड्यूसिंग, सम टाइम यू आर चेंजिंग, बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर चेंजिंग द फैक्टर, इजंट इट? यस सर। तो इसके लिए इसकी टर्मिनोलॉजी है VCF एंड WCF आ गई। सो दिस इज व्हाट इट इज, आई हैव डन GOV, VCF, GSV, वेट इन एयर, क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज सो मच। तो ये तो आपका वेरी सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल था। अब थोड़ा सा मैं इसको, सर एक बार दिखाना, एक बार प्लीज लास्ट वाला। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, थोड़ी सी इसकी वेरिएशन।
अब आपने देख लिया टैंक डायमेंशंस आर गिवन टू यू, डेंसिटी इज गिवन टू यू एट 50। क्वेश्चन लिख लिया सर, क्वेश्चन लिखना है ये लिख लीजिए बच्चे, या सीधा सॉल्व करें सर? अपना आपका रिकॉर्ड अच्छा बन जाएगा। आप अपनी नोटबुक पे क्वेश्चंस को लिखते जाइए, नीचे अपने ढंग से उसका सोल्यूशन, कुछ रेफरेंस पॉइंट लिखना, सो दैट इट बिकम्स अ गुड बुक फॉर यू, फॉर अ गुड रेफरेंस। कभी भी देखना कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था। These questions you have done in second base time, you have done. I am just refreshing you. क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो सर क्वेश्चन लिख लिया सर, करके देखते हैं सर, फिर करते हैं बात से। चलो गुड सर तब तक सर वो ASTM टेबल भेज दो सर। ओके डालते हैं, ओके ओके। Here it is faster if I just go to the मिनट में अनशेयर करता हूँ, देन आई विल। क्या हो गया? कौन सा है आपका फेज 1? Yeah, you got it there?
ओके सर ये जो जीएसवी होता है वो 15 डिग्री पे ही निकलता है, या मतलब जीएसपी का बच्चे मीनिंग ही है, जीएसपी मीन्स जीएसवी 15 डिग्री पे ही है ना, यस। 44 डिग्री पे कैलकुलेट करना है, तो मतलब VCF 44 डिग्री को जीओवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर? मतलब अब इस क्वेश्चन में आपको कहता है मिनिमम एवरेज ऑफ 1.2 वो तो मीटर ठीक है सर एक बस ये पूछना था, अगर जीओवी को डेंसिटी एट 44 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जीओवी को डेंसिटी एट 44 पे डेंसिटी कहाँ से आ गई आपके पास? ये मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री जाना है ना सर? करेक्ट, तो आप क्या करोगे, VCF का 44 बोल रहे डिग्री हैं। पे VCF निकालोगे। हाँ सॉरी VCF कह रहा हूँ सर, VCF सॉरी VCF जीओवी मल्टीप्लाई बाय VCF एट 44 डिग्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या मिलेगा? इट विल गिव यू जीएसवी। उसको जीएसवी बोलेंगे ना हम? ठीक है सर, ठीक है सर, ओके थैंक यू। So GSV stand for what is the full form? ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम। Gross standard. Okay. या तो जैसे हमारा जीओवी है, जीओवी क्या, ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, कि मैं अलेज लेता हूँ अपने टैंक की, जो मेरे को अलेज मिलती है कैलिब्रेशन टेबल से, आई गो एंड आई सी व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम इन द टैंक, हम उसे ग्रॉस ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम कह देते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको 15 डिग्री पे निकाल दिया, जो एक स्टैंडर्ड डेंसिटी है, इसलिए मैं उसे ग्रॉस स्टैंडर्ड वॉल्यूम कह देता हूँ। सर तो जीएसवी हर टेम्परेचर के साथ बदल सकती है या कांस्टेंट रहेगी? अच्छा देखिए, किसी भी ऑयल का 15 डिग्री पे टेम्परेचर कैसे बदलेगा, 15 पे तो वही रहेगा ना। नहीं सर, जैसे अभी आपने बोला ना, अभी चेतन ने पूछा तो कि जैसे जीएसवी निकालना है तो VCF 44 का अगर मल्टीप्लाई कर दोगे जीओवी से तो आपका उस टाइम का जीएसवी आ जाएगा, तो उस टाइम का जीएसवी का मतलब तो ये हो गया जीएसवी चेंज हो रहा है। नो, क्यों चेंज होगा बच्चे? अभी देख, मेरा वॉल्यूम है 1000 मीटर क्यूब, एग्जांपल एट 44, मैंने इसको VCF से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया 988, एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल के तौर पे। अब ये 988 मीटर क्यूब एट 15 डिग्री विल रिमेन 988 एट 15 डिग्री एनी टाइम, ये थोड़ा चेंज होगा। हाँ, टेम्परेचर चेंज होगा, फिर ये 988 जो वो चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर 15 डिग्री है, फिर तो 988 ही रहेगा ना। So simple words में we can say that with the temperature density will change. As the density will change, GSV will change. यस। Okay sir. ये हो सर सेकंड मिनट पर थोड़ा रिमाइंड नहीं आ रहा है मतलब सिंपल में पूछा तो सर जीएसवी अभी जब हम 36 डिग्री पे कैलकुलेट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, 44 पे करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, राइट सर? करेक्ट, यही तो इस टेबल की खूबसूरती है, अलग वैल्यू आएंगी ना? हाँ जी। ठीक है। ये आपको ठीक है। वॉल्यूम चाहिए 36 पे, दोनों पे चाहिए ना, मुझे लोडिंग पे भी चाहिए, मुझे मैक्सिमम पे भी चाहिए। करेक्ट। मैक्सिमम कितना बनेगा? तो जीएसवी दो अलग वैल्यू आएंगी, 36 डिग्री पे अलग आएगा, 44 डिग्री पे अलग आएगा, राइट सर? करेक्ट। तो ठीक सर है सर। आप अभी तो कह रहे हैं कि नहीं, जीएसवी सेम रहता है। सर जीएसवी सर सेम रहेगा सर, जीएसवी सेम रहेगा ना सर? चेंज होगा, VCF चेंज होगा बच्चे, जीएसवी नहीं चेंज होगा, VCF चेंज होगा। तो सर बेसिकली VCF अगर चेंज हो रहा है, जीओवी जैसे मान लो अपना, अभी इस सिंपल क्वेश्चन में अपन ने वॉल्यूम निकाल लिया, अलेज को माइनस करके 1.2 से जो वॉल्यूम आया वो 15 डिग्री पे आ गया। नो 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 नो, आपने कहा है मिनिमम अलेज 1.2 मीटर एट 44 डिग्री, दैट मीन्स कि मेरे को, जस्ट आई विल एक्सप्लेन यू दिस वंस अगेन, आई थिंक, एक मिनट में वापस आपको बोर्ड पे लेके जाता हूँ। इसका फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम अभी हम कर क्या रहे हैं, देखिए मेरे पास ऑयल है टैंक में, व्हेन यू आर लोडिंग ऑयल, अभी मैंने लोडिंग नहीं की, बट मेरे पास स्पेसिफिकेशन है कि यार जब मेरा जहाज 40 मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री पे पहुंचेगा, मेरे को यहाँ पे 1.2 मीटर की अलेज चाहिए एट ऑल टाइम्स। एट ऑल टाइम्स मीन्स एट 44 ऑल्सो मेरी अलेज जो है कम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज सपोज मैं तेल को 30 डिग्री पे, अब मैं लोड कर रहा हूँ 36 पे, 36 पे मैं लोड करता हूँ, जब जहाज 44 पे पहुंचेगा तो नेचुरली अलेज कम हो जाएगी। उसने पहले लिख दिया
allele should be 1.2 meter at all times, means at 44 also the allele should be 1.2. तो यहाँ से मेरे को I can calculate what should be the GOV at 44. मैक्सिमम वॉल्यूम 44 पे मेरे टैंक में कितना होना चाहिए वो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। आपके पास टैंक की लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है 22/16/12.5 है। हाइट ऑफ द टैंक तो नहीं आता, लेट्स पोर्ट इज 1 पॉइंट ऑफ गया, सो इट इज 12.5 GOV at 44 will be equal to length into breadth into height of oil. Height of oil कितनी आएगी 12.5 plus 1 meter is the allege pipe, 12.2 meter मेरे को allege चाहिए। At 44 डिग्री सेंटीग्रेड आपका मैक्सिमम टैंक में इतना वॉल्यूम होना चाहिए, तेल इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये आपकी कितनी आएगी 22 into 16 into 4329.6 कितनी आई 4329.6 4329.6 4329.6 मीटर क्यूब इतना तेल होना चाहिए जब मेरा जहाज एट 44 डिग्री पे भी पहुंच जाता है, इससे ज्यादा नहीं ऑयल आना चाहिए। सर बेसिकली इसमें जो था 1.2 अलेज मेंटेन करनी थी, तो 0.2 तो टैंक की छोड़नी थी और 1 मीटर अबोव द डेक दे रखा था। करेक्ट। हाँ, तो हम 98% वैसे भी भर सकते थे। 12.5 का अगर 12.5 का 98% लेते तो उतना अपन लेंथ डायरेक्टली भी तो ले सकते थे इसमें। ये उसने कहा है ना, उसने अलेज दे दिया आपको। he is not saying percentage, he has given you that there should be 1.2 मीटर अलेज। ये जो अलेज है 1.2 मीटर ये यहाँ से नहीं है, बेसिकली ये अलेज यहाँ से है। हाँ सर वही तो कह रहा हूँ, तो 0.2 ही तो छूटेगा। करेक्ट समझ गया मैं आपके मन में क्या डाउट चल रहा है। ये अलेज पोर्ट इज 1 मीटर अबव द डेक एंड ये अलेज पोर्ट यहाँ से मेरे को जो अलेज मिल रही है वो 1.2 मीटर मिल रही है यहाँ से। हाँ, तो ये अगर अपन इसको इंक्लूड ही नहीं करते, +1 को इंक्लूड ही नहीं करते, सिर्फ 0.2 ये 1.2 माइनस कर देते सिंपल सा, तो भी अपने पास वॉल्यूम तो आ ही जाता है इसका। करेक्ट बच्चे, ऐसे भी कर सकते हो, व्हाटएवर प्लीजेस यू। देयर आर टू वेज। एक तो मैं ऐसे करता हूँ कि यस 1.2 माइनस 1.2 माइनस मैंने अलेज पोर्ट की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दी तो मेरे पास 0.2 मीटर अलेज आ गई। अब मैंने हाइट ऑफ ऑयल निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ 12.5 माइनस 0.2 12.3 दैट इज द हाइट ऑफ ऑयल। ये जो हाइट है ये 12.3 आ गई, 0.2 माइनस किया 12.5 में से। हाँ सर। करेक्ट और नॉट? यहाँ से भी देख लीजिए। तो इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग फॉरगेटिंग मैंने इसमें 1 मीटर ऐड किया, 13.5 माइनस 1.2 तब भी 12.3, बात एक ही है। तो विचएवर मेथड सूट्स यू कैन डू। बट इसमें क्या है, कई बार आप भूल सकते हो यार अलेज पोर्ट इज 1 मीटर अबव, इसलिए ये मेथड तो ज़्यादा सूटेबल लगता है कि एनी टाइम। क्यों? अब जब मैं लोड कर रहा हूँ, ये तो था मेरा वॉल्यूम एट 4329.6, जहाज 44 पे पहुंचेगा तो इतना वॉल्यूम होना चाहिए। एट व्हाट अलेज आई शुड स्टॉप एट लोडिंग टाइम। सो जब मैं 36 पे लोड कर रहा हूँ तो मेरे को किस अलेज पे रोकना है ताकि 44 पे इतना वॉल्यूम हो। एट व्हाट अलेज आई शुड स्टॉप एट 36 डिग्री व्हेन आई एम लोडिंग। लोड पोर्ट मेरी यहाँ पे है, जब मैं लोड पोर्ट में लोड कर रहा हूँ तो मैं कितनी अलेज पे तेल को रोकूं, how much volume I should have at 36 so that 44 पे इतना आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सिंपल मेथड है, ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, मैं इसका मास निकाल लेता हूँ यहाँ। If I calculate the mass, this mass is going to remain same, चाहे मैं 44 पे रखूँ चाहे मैं 36 पे जाऊँ, this metric ton is not going to change। तो इसका मास निकालना बहुत इजी है, into VCF into WCF। 3567। तो आपके पास कितना मास आ गया? मास ऑफ ऑयल इन एयर आपके पास आ जाएगा 347। यस सर 3567.1.15। नो, मास विल बी 3479.405 tons। या अब आप
एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि हाँ यार ये 3479.4 मैट्रिक टन, चाहे वो 44 पे हो, चाहे वो 36 पे हो, चाहे वो 22 पे हो, चाहे वो 12 डिग्री पे हो, दिस मैट्रिक टन इज नॉट गोइंग टू चेंज. मास इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. वॉल्यूम चेंज होता है, ये मास इतना ही रहने वाला है. अब मैं इस मैट्रिक टन को उठा के 36 पे ले आता हूँ. क्या 3479.4 दस्तानूरा में जहाँ मैं लोड कर रहा हूँ, अब मैंने मेरे टैंक में कितना वॉल्यूम होना चाहिए जिससे मैं आलेज निकाल सकता हूँ. तो व्हाट डू यू डू, आपके पास मास है, मैं इसे WCF से डिवाइड करता हूँ, या आपके पास यहाँ पे भी GSV होगा. अगर मैं इसको 4329.6 को VCF से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो GSV सेम रहेगा. GSV आ गया, या यहाँ पे भी GSV आ गया, या सेम यहाँ, टाइम नहीं कर सकते हम लोग हाँ जी, GSV से मल्टीप्लाई डिवाइड. या नाउ यू गेट द GSV ऑफ 4229.09. इतना ही आया GSV, यहाँ पे भी उतना ही आएगा. GSV विल रिमेन सेम. वॉल्यूम इनटू VCF एट 44 करता हूँ तब भी GSV यही आना था. सर हम अगर वो ये वेट ना निकाले, जो GSV आ गया उसको सीधा VSF 36 से डिवाइड कर दे, करेक्ट, कैन डू दैट, वो भी कर सकते हो. वो सीधा आ जाएगा ना. करेक्ट, आपने यहाँ पे निकाल लिया ना, यहाँ पे आपने VCF से मल्टीप्लाई किया, ये हाँ आपका जी. वॉल्यूम था मल्टीप्लाइड बाय VCF एट 44. 44. हाँ जी. VCF कितना था आपका सर 4223.09. 54. VCF was 0.97. 9753 एट 44. इससे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वही GSV आएगा, वो 3.09. हाँ जी. अब मेरे पास ये GSV है, दिस इज बेसिकली GSV इतने मीटर क्यूब. अब इस GSV को मैं, इफ आई डिवाइड द GSV बाय VCF 36 at 36, I get GOV at 36. GOV 36 Correct. and divided by area. Correct. ये आ रहा है 4299.625. तो अब मैंने जब इसको डिवाइड किया तब आपके पास कितना आ गया, 4299.625. 4295.25. okay, 4299.95. So 4295. No, 4299.62. हाँ सर मेरा भी यही आ रहा है. Yeah, that is the yes, sir, यही है, यही match कर रहा है. 4299.62. yeah, that is the GOV at 36. Because VCF at 36 is 0.9822. VCF at 36 is 0.9822. तो इसके लिए ये आपके पास GOV आ गया. नाउ दिस आई डिवाइड बाय एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, आई विल गेट द हाइट ऑफ ऑयल which is equal to 12.21. अब यहाँ पे मेरे को पता है मैंने तेल यहाँ पे है रोकना है 12.21 पे. Now can you calculate the ullage, ये वाली ullage. Sir 1.285. Yeah, correct. चलो, I hope up to here. और सर इसको लोड करने के लिए GOV जो आ रखा है, इसका वेट निकालने के लिए हम डायरेक्टली GSV को WRF से मल्टीप्लाई कर देंगे. वेट के लिए, वेट निकालने के लिए आपको बच्चे GOV इंटू VCF इंटू WCF. सर वो वेट निकलेगा इन्हें, अगर वैक्यूम में निकालना है तो इसके जो डेंसिटी 15 डिग्री पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वैक्यूम में आ जाएगा. करेक्ट, वैक्यूम का हमें पास ही नहीं है कोई शीट में मेरे नहीं को. वैसे पूछ रहा हूँ सर. हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट बच्चे, करेक्ट. ठीक. 422 को if I multiply by 825 जो इसने डेंसिटी दी है 0.8250, so you get that. सर पर इसका तो वेट ही नहीं है, डायरेक्टली टेबल से ही निकल जाएगा ना, GSV मल्टीप्लाई WRF से. टेबल से वेट कैसे आएगा बच्चे? टेबल से तो सर वेट रिडक्शन फैक्टर आ गया अपने पास टेबल से. देखता हूँ मैं, बात करते हुए बात नहीं की, मैं तो जरा बताओ.
सर एंड को सर देखो सर इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ। आई शेयर द सोल्यूशन बिकॉज टाइम थोड़ा कम है एक्चुअली। न्यूमेरिकल्स के लिए आई नीड 2 आवर्स क्लास। ये लीजिए, कैन यू गाइस सी दैट मैक्सिमम वॉल्यूम और GOV at 44 डिग्री सेंटीग्रेड 4329.6, गिवन डेंसिटी एट 50 डिग्री 8250, VCF एट 44 आपने निकाल लिया। आपके पास GSV 422 3.09, मास ऑफ ऑयल इन वैक्यूम, मास ऑफ ऑयल इन एयर। दैट मीन्स मेरे टैंक में इतने मेट्रिक टन ऑयल होना चाहिए बिकॉज मेरे को वॉल्यूम मिल गया 44 पे। मेरे टैंक में कितना वॉल्यूम होना चाहिए आफ्टर एक्सपेंशन। ठीक है यहाँ तक? इसमें एंड रूम में मिलेगी पीडो होगा उसमें। हाँ जी, तो बता के बता दूंगा। ऐसा बात है तो चलो फोन भी कम हो रहे हैं जैसे मैंने सुना है। तो लेट्स सी क्या होगा। अरे उसने खुद बोला कहता है यार मैं VDS के बाद सीधे यहाँ पे बैठ गया था। तो मुझे लगा वो करनी चाहिए एमडी। उसने एमडी ऐसी चीज में हो जाता सर। सर ये वेट जो अपन ने निकाला है इसमें आपने, ठीक है सर, ठीक है। सर ये वैक्यूम में निकालने का जरूरत नहीं है ना? नो नो नो। रजनीश आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो। ठीक है, इसके बाद आपका टू कैलकुलेट अलेज एट लोड पोर्ट टेम्परेचर इज 36। GSV आपके पास है ऑलरेडी, आपने निकाला हुआ है। VCF एट 36 इज सो एंड सो। सो GSV डिवाइड बाय VCF विल गिव यू द GOV एट 36 4299.62। हाइट ऑफ ऑयल GOV डिवाइड बाय लेंथ इनटू ब्रेथ एंड इट इज 12.21। अलेज यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। 12.5 प्लस 1 माइनस 12.21 1.29। सर ये जो अपन डेंसिटी होती है सबके लिए कांस्टेंट ही लेते हैं ना, कोई से भी टेम्परेचर पे चल जाओ उससे डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? मैं समझा नहीं बच्चे आपका क्वेश्चन। डेंसिटी में क्या फर्क नहीं पड़ेगा? सर जैसे आप 44 पे चले जाओ या 36 पे आ जाओ, जैसे टेबल से वैल्यूज उठाते हैं तो सेम डेंसिटी के लिए उठाते हैं सब जगह। यस तो डेंसिटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना? या 44 पे इसी हम क्या निकाल रहे हैं? हम एक्चुअली VCF निकाल रहे हैं, isn't it? निकाल रहे हैं सर। जैसे पर फॉर द एग्जांपल अपने को डेंसिटी 15 डिग्री की दे रखी थी क्वेश्चन में, ओके 0.8250। अब जैसे मैंने क्वेश्चन तो WRF को लिया था, डेंसिटी 15.820 को मैंने 56 की टेबल में देख लिया था, वहां से वैल्यू निकाल ली थी WRF की, उसको मैंने GSV से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि डेंसिटी किसी भी टेम्परेचर पे, अभी तो मान लो 36 पे मांगा था इसको, अगर मैं इसको 30 पे मांगता तो भी डेंसिटी तो सेम ही रह गई ना? डेंसिटी तो कहीं चेंज कर ही नहीं रहे ना अपन लोग क्वेश्चंस में। नो डेंसिटी विल रिमेन सेम बिकॉज मैं उसी डेंसिटी से 30 डिग्री के VCF पे जाऊंगा। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ ये देखिए ना, आप क्या करेंगे अगर इफ यू सी दिस टेबल, अगर मैं ये टेबल 54 पे जाता हूँ तो व्हाट डू आई डू? मेरी डेंसिटी तो वही है 54 पे, मेरी डेंसिटी तो वही रह रही है, डेंसिटी नहीं चेंज हो रही, isn't it? तो मेरी डेंसिटी 8250, सो मैंने उसी को रखा। चेंज क्या हो रहा है? VCF चेंज हो रहा है। सो 8250 पे अगर मैं जाता हूँ 8250 विल बी यस 8250, ये आपकी डेंसिटी आ गई। हाँ सर। एंड अब मेरा टेम्परेचर होने दीजिए चेंज। अब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सिर्फ कहाँ से चेंज हो रहा है?
ये 8250 आया। अब मेरा टेम्परेचर है 36, मैं 36 पे चला जाता हूँ। 36 पे मैंने 8250 इस लाइन में आ गया। 9830 आया 36 पे, 36 इज 9824, ये डेंसिटी आ जाएगी। अब अगर मेरा टेम्परेचर 30 डिग्री आता है, मेरे को 30 डिग्री पे वॉल्यूम निकालना है, नेचुरली मेरा ये VCF चेंज हो रहा है। अब मैं इस पे जाऊंगा 9874, डेंसिटी वही रहेगी, सॉरी ये 8250 इस पे जाएंगे, 30 पे ये वाली डेंसिटी आ जाएगी, ये वाला VCF आ जाएगा। सो VCF को तो दो चीज़ें चाहिए, डेंसिटी वही रहेगी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसके लिए VCF जो है ऊपर नीचे जाता जाएगा। ओके सर एक चीज और मैं पूछ रहा था, जैसे ये दोनों क्वेश्चंस तो बहुत नॉर्मल, मतलब जो क्वेश्चन जैसे उसमें डिप है, वेज है, पता नहीं क्या क्या, वो टिल्ट हो गया, वैसे क्वेश्चन चाहिए तो बहुत आएंगे बच्चे, आएंगे ना, स्लोली आएंगे। देखिए इमीडिएटली मैं उस क्वेश्चन पे आ जाऊं तो अभी बेसिक ही नहीं हमें पता, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना। नहीं सर, मैं बस ये कहने का मतलब ये है कि प्लीज सारे क्वेश्चंस करा देना पेपर के लिए, मतलब पास होने जितने कि सारे क्वेश्चंस करा दो वैसे। डोंट वरी शिवांग, डोंट वरी, आप बिल्कुल थोड़ी सी साथ साथ अपनी थोड़ा जिसे कहते हैं ना एक ऑपरेशन रखिए कि हाँ आप न्यूमेरिकल साथ साथ करते जाइए, अपने आप करते जाइए। डोंट लुक फॉर इनटू माय सॉल्यूशन कि हाँ सर सॉल्यूशन दिखा दो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नहीं, आप करते गए आप मेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट हो जाओगे। सिर्फ क्वेश्चन करते जाना है साथ साथ, मैं स्टेप वाइज जा रहा हूँ, स्लोली। अभी तो ये आपकी रिवीजन है, ये आपने किया था, अब देखो आपको पता लग गया यार फर्स्ट मेथड क्या है, सेकंड ESTM क्या है, 54 क्या है, 56 क्या है, ये डेंसिटी कैसे निकालनी है, वॉल्यूम से वेट कैसे निकालना है, इजंट इट। एक तो क्वेश्चन अभी 1 घंटे की क्लास थी, कल हमारी क्लास है, फिर हम करेंगे, फिर हम स्लोली आगे जाएंगे। अब तो ये था, now you are doing the allege is same, the ship is on even keel, allege is same all over the tank। उसके बाद आएगा now the ship has got a trim, फिर जो allege है वो सेम नहीं होगी, फिर वो allege चेंज हो जाएगी। चलो आगे की नहीं सोचते, जहां तक हमने किया है सो फार आई होप ऑल गुड। यस सर, ऑल गुड। चलो डाउट होएगा, छोटा सा भी डाउट है रोक दीजिए, नो पॉइंट आगे चलते जाएं, और पीछे का छोटा सा भी डाउट है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया आई थिंक 50% तो आपका काम हो गया ऑलरेडी। इट टेक्स टाइम, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो करा रहा हूँ, बार बार करा रहा हूँ, तब ठीक है मेरे को ये सारा एक किस्म का टिप्स पे, और इवन हम तो ऑयल लोड किया, हमारे टाइम में लोडिकेटर नहीं होते थे तो हमें तो ये करना पड़ता था, सारी ज़िंदगी यही करते कि GSV WCF GSV WCF। आपको थोड़ी मुश्किल है बिकॉज आप एक तो शिप पे लोडिकेटर और यहाँ पे आपकी थ्योरी चल रही है, बाकी ये नहीं है। डोंट यू थिंक, मेरे को तो नहीं लगता ये क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो विल बी ऑल राइट। चलो ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, मेरी भी क्लास है, अदर गाइस विल ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। बाय। ओके सर, थैंक यू। वेलकम, वेलकम।